Let us read the question. A monochromatic beam of light is incident at 60 degree on one face of an equilateral prism of refractive index n. This is an equilateral prism having refractive index n, and light ray is incident at an angle of 60 degree at one of the refracting faces and emerges from the opposite face making an angle of theta, right, with the normal. For n is equal to root 3 and value of theta 60 degree and d theta by dn is equal to m, find the value of m. So, the actually question is not at all difficult, but the last statement makes it a bit difficult to understand what exactly is given, what exactly is being asked, a sort of confusing statement. For n is equal to root 3, the value of theta is 60 degree. The statement says when refractive index is root 3, this theta is equal to 60 degree and d theta by dn is n. Actually, for n is equal to root 3, for n is equal to root 3, value of this angle is 60 degree and for n is equal to root 3 only, d theta by dn is m. जब n की वैल्यू रूट 3 है उसी समय d theta by dn की वैल्यू m है. Rate of change of theta with n is some number. We have to find that particular number. So यहाँ पे एक hint भी है क्वेश्चन में. The question says that theta is a function of n. So that itself is a hint. This type of expression, this type of symbol of function has been devised only to tell you which is dependent variable and which is independent variable. When this sort of expression is there, this sort of symbol is there, it directly tells you that n is an independent variable, theta is dependent variable. So you have to express theta in terms of n, and thereafter you have to find d theta by dn when n is root 3. Okay? When n is root 3, an additional information has been given that at that point in time theta is 60 degree. So our whole and sole task is to express this angle theta as a function of n. This angle is given, this is fixed 60 degree. This is not 60 degree. You should not start by taking theta as 60 degree. No, what we are supposed to do is we are supposed to write theta in terms of n. For different refractive index of this material, we will get different angle of emergence. So how will this angle of emergence depend on refractive index of the material? That is the question basically. Rest all I think is not very difficult. From Snell's law on the first surface, we can write refractive index of air 1 into sine of 60 degree is equal to refractive index of this medium n into sine of this angle. This angle is usually denoted by r1. So root 3 by 2, which is sine 60 degree into 1 is equal to n times sine r1. This is our equation using Snell's law at the first refracting surface. Similarly, if you apply Snell's law at this second refracting surface, this is angle of incidence which is usually denoted by r2. So let us write it as r2. Refractive index of glass n into sine r2, n into sine r2. This will be equal to refractive index of air 1 into sine theta. So Snell's law at second surface. Now all of you must be knowing that r1 plus r2 is this angle because it is an equilateral prism. It is given in the question, it is an equilateral prism. So that prism angle is 60 degree, this is 60 degree. So r1 plus r2 is actually 60 degree, which means r2 can be written as 60 minus r1. So if you write it that way, n sine, in place of r2 I have written 60 minus r1, that is equal to sine theta. Now you open this, expand this using the formula of sine a minus b. So this is sine a cos b minus cos a sine b. So sine of 60 degree cos r1 minus cos of 60 degree, which is half, then sine r1, right. So this expression now contains theta, n and r1. R1 is not a given quantity, isn't it? But we can express r1 in terms of n using the first equation. This is the first equation that we obtained by applying Snell's law at the
first refracting phase. So we want a relationship between theta and n. No other variable should be present there. So here this relationship has got theta and n, but then there is r1 also. We need to eliminate it. So using this equation, I am going to eliminate r1 from this equation. It is pretty straightforward. Sin r1 is root 3 by 2n. So in place of sin r1, I can write root 3 by 2n. And if you know sin r1, you can calculate cos r1 as well. So sin r1 is root 3 by 2n. And if you work out the value of cos r1, it is equal to under root of 4n square minus 3 by 2n. That means under root of 1 minus sin square r1. Cos theta is under root of 1 minus sin square theta. Using that, you can work out cos r1. Now substitute the value of cos r1 and sin r1 here. Do some simplification. This is what you will get. This equation transforms into this form. Now in this form, we have got an equation. We have got an equation which has got two variables, theta and n. Theta is our dependent variable, n is our independent variable. So basically we have expressed theta in terms of n, isn't it? So now we will differentiate to find d theta by dn. So we will straight away differentiate this equation with respect to n. If you do the differentiation and some manipulation, this is what you are going to get. आप खुद से कर लीजिएगा. I hope you all can do this. Do this differentiation, differentiate this with respect to n. This n cancels out actually, isn't it? This n cancels out. And the differentiation is rather simple one. It's not at all difficult. So you can just differentiate it, and after differentiating, you can find d theta by dn, right? Now d theta by dn is something which is dependent on theta itself. It should be, isn't it? Because the question does not ask you to give the value of d theta by dn in terms of n only. इसीलिए क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल बनाने के लिए देखिए क्या किया इन्होंने कहा है कि जिस समय n की वैल्यू रूट 3 है, उस समय थीटा 60 डिग्री है, उस समय तुम d थीटा बाई डी एन बताओ. तो d थीटा बाई डी एन की वैल्यू एक स्पेसिफिक पॉइंट पे बताना है जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है. तो भाई यहां थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो. समझ गए बात को? थीटा की जगह 60 डिग्री लिख दो तो फिक्स नंबर है ना. थीटा की जगह 60 डिग्री लिखने के बाद n की वैल्यू रूट 3 सब्सटीट्यूट करने के बाद तुम्हें डी थीटा बाई डी एन की ये वाली वैल्यू यहां पे कैलकुलेट करके बतानी है. जो इन जनरल अगर बोलें कि डी थीटा बाई डी एन को n के टर्म्स में एक्सप्रेस करो, देन वी आर गेटिंग दिस कॉस थीटा, and because sin theta in terms of n is known, again I'll have to write cos theta in terms of n and then make the substitution. So it will be a big expression like that. कर सकते हैं because d theta by dn में cos theta जो आ रहा है उसको भगा सकते हैं. sin theta is known as function of n, so I can express cos theta as function of n. यहाँ मैंने थोड़ा मैथमेटिक्स के स्टेप कट कर दिए, तुम कर लेना खुद से, ठीक है. दैट कैन बी डन, पर वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब एक स्पेसिफिक वैल्यू n जब रूट 3 है तो थीटा 60 डिग्री है, उस समय m की वैल्यू डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू पूछी गई है. हाँ, क्या जब थीटा 60 डिग्री है तो उस समय n रूट 3 है, या जब n रूट 3 है तो क्या थीटा 60 डिग्री है? ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको एक्चुअली दे दिया गया. आप देखिए, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री या फॉर एग्जांपल अगर क्वेश्चन में सिर्फ ये लिखा होता फॉर n इज इक्वल टू रूट 3 फाइंड डी थीटा बाई डी एन, तब क्या कर लेते आप? तो भाई n अगर रूट 3 गिवन है तो यू कैन वर्कआउट थीटा. यस, यू विल गेट 60 डिग्री. करके देखिए, मैंने करके देखा था. सो ये स्टेप आपको बचा ले जाता है, एक स्टेप आपका बच जाता है क्वेश्चन के इस स्टेटमेंट की वजह से. ठीक है, n जब रूट 3 है और ये 60 डिग्री है तो थीटा 60 ही आता है. अब क्वेश्चन ये है कि अगर n को बदला जाए तो एट व्हाट रेट थीटा विल चेंज विथ n, व्हाट विल बी डी थीटा बाई डी एन. So you can do this differentiation and get the answer. Now students, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसा मॉडिफाई, एक स्टेप और अगर आगे बढ़ाना होता तो कुछ ऐसा मॉडिफाई किया जा सकता था. क्वेश्चन में वो सब बातें जो लिखी हैं सो लिखी हैं, उसके अलावा कुछ और भी ऐसा ऐड किया जा सकता है. Assume that wavelength of incident light is in the range of lambda naught plus minus delta. ऐसा मान लो जो इंसिडेंट लाइट है that contains a range of wavelength lambda naught plus minus delta, where delta lambda, where
डेल्टा लैम्डा इज क्वाइट स्मॉल कंपेयर टू लैम्डा नॉट। इसका मतलब ये हुआ जैसे ये 4000 नैनोमीटर है, मान लो, 1 मिनट, 4000 एंगस्ट्रम है, सो सॉरी, विजिबल लाइट मान लेते हैं, ये 4000 एंगस्ट्रम है, तो ये जो डेल्टा लैम्डा वो 4000 के सामने काफी छोटी है, हो सकता है कि 50 एंगस्ट्रम हो, चलेगा। Also assume that the refractive index of the material of the prism varies with wavelength as. Now the question says that refractive index of the material of the prism changes with wavelength according to this equation. Here A and B are two constants. Find the dispersion angle of the emergent beam. पिछले क्वेश्चन में बच्चों ये कहा जा रहा है, पिछले क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि yes, this theta will change with n. If you change the refractive index, theta will change. Now, for different wavelength of incident light, value of n is different. अभी जो क्वेश्चन मैंने पूछा उसमें यह कहा जा रहा है कि for different wavelength of incident light, refractive index is different. तो naturally इस प्रिज्म के मटेरियल को बदलने की जरूरत नहीं है. If you just change the incident light, if you change the wavelength of incident light, the refractive index will become different. And if the refractive index n becomes different, then the angle of emergence will also become different. तो यहां से अगर अलग अलग वेवलेंथ की लाइट को भेजेंगे तो उनके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होगा और n की वैल्यू अलग अलग होगी, तो थीटा तो अलग अलग होगा ही, बिकॉज ये थीटा और n में रिलेशन है. इफ n इज डिफरेंट, थीटा इज डिफरेंट. तो क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि अगर हमारे पास एक ऐसी लाइट है जिसका वेवलेंथ लैम्डा नॉट है, मान लीजिए, सॉरी, ये इमर्जेंट रे. अब अगर वेवलेंथ को स्लाइटली तुमने बदल दिया तो n बदल गया. n बदलने से ये जो रे है प्रिज्म के अंदर, इट विल टेक ए डिफरेंट पाथ, क्योंकि इसका डेविएशन अलग होगा. और नेचुरली यहां पे भी जो लाइट रे निकलेगी, इट विल टेक ए डिफरेंट पाथ. तो नेचुरली जो लाइट रे निकलेगी फॉर डिफरेंट वेवलेंथ, वो अलग अलग डायरेक्शन में निकलेगी. तो यहां जो पूछा गया फाइंड डिस्पर्सन एंगल, तो अगर मैं इसको एक ही जगह पूरे डेविएशन को दिखा दूं सिंप्लिसिटी के लिए, जस्ट सिंप्लिसिटी के लिए एक ही जगह पूरे डेविएशन को दिखा दूं, तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, इजंट इट? जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटी होगी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे छोटी मतलब लेस डेविएशन. तो जो सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा वो शायद यहां निकला, और जो सबसे छोटा वेवलेंथ होगा वो यहां निकला. तो जो बाहर लाइट बीम निकलेगी उनमें जो दोनों एक्सट्रीम रेज होंगे, सबसे छोटे और सबसे बड़े वेवलेंथ को एक्सट्रीम रे कह रहा हूं, इनके बीच में एक एंगल होगा, यही डिस्पर्सन एंगल है. इसी एंगल को कैलकुलेट करने को कहा जा रहा है. तो आप में से जो लोग इसको ट्राई करना चाहें, रुक जाएं और जरूर ट्राई करें. सॉल्यूशन मुश्किल नहीं है. देखिए, इस इक्वेशन को अगर हम डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें यह मिलता है. इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मतलब है कि अगर लैम्डा की वैल्यू में डेल्टा लैम्डा का बदलाव करोगे, अगर लैम्डा को थोड़ा सा बदलोगे, डेल्टा लैम्डा, वी आर अज्यूमिंग दैट डेल्टा लैम्डा इज अ स्मॉल चेंज इन वैल्यू ऑफ लैम्डा. सो इफ लैम्डा इज चेंज बाय सम स्मॉल अमाउंट डेल्टा लैम्डा, then value of n will change correspondingly by a small amount delta n, which is obtained just by differentiating this. Now, what will be delta theta? What is delta theta? Delta theta is change in value of this theta, right? It is change in value of this theta. How do we obtain that? Delta theta is equal to minus 4b by lambda q डेल्टा लैम्डा. यहां देखिए, अभी जो क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा के मैं पूछ रहा हूं. मैं क्या कह रहा हूं, क्वेश्चन में ये सब जो लिखा है वो लिखा है, इन एडिशन टू दैट वो सब लिखा है. मतलब लाइट रे 60 डिग्री पे ही भेजी गई है. तो इस समय जो डी थीटा बाई डी एन है उसकी वैल्यू तुमने अभी कैलकुलेट की कि 2 है. इस समय डी थीटा बाई डी एन कितना है, उसकी वैल्यू तुमने कैलकुलेट की कि 2 है. तो भाई डी थीटा बाई डी एन की वैल्यू 2 है. गौर करना, उसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, delta theta is 2 times delta n. For small changes in value of n, there will be small change in value of theta, and delta theta can be written as 2 times of delta n. तो वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का बदलाव हुआ. अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का बदलाव हुआ तो वो जो थीटा में चेंज हुआ वो कितना हुआ?
डी थीटा बाई डी एन तुमने 2 निकाला है ना, एम की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है ये। तो डी थीटा बाई डी एन इज इक्वल टू 2, सो करस्पॉन्डिंग चेंज इन वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी रिटन एज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एन। तो दिस डेल्टा एन मल्टीप्लाई दिस बाई 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, डेल्टा थीटा निकल गया। विच मीन्स कि अगर मैं इस प्रिज्म के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में एक छोटा सा बदलाव डेल्टा एन करता हूं, तो यहां जो लाइट निकली, इस लाइट रे के एंगल ऑफ इमर्जेंस में थीटा में जो बदलाव होगा डेल्टा थीटा, इट इज 2 टाइम्स डेल्टा एन। और वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज करने से जो डेल्टा एन की वैल्यू बदली है वो इतनी बदली है। तो वेवलेंथ में डेल्टा लैम्डा का चेंज मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डेल्टा एन का चेंज, और थीटा की वैल्यू में करस्पॉन्डिंग चेंज 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा एन। ये इतना हो गया। अब क्वेश्चन में जो कहा गया है कि दैट वेवलेंथ इज लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा। तो लैम्डा नॉट प्लस माइनस डेल्टा लैम्डा मतलब लैम्डा नॉट से डेल्टा लैम्डा ज्यादा और डेल्टा लैम्डा कम भी। तो जो डेल्टा थीटा की वैल्यू है वो एक बार तो माइनस दिस होगी और एक बार प्लस दिस। क्यों? जब डेल्टा लैम्डा पॉजिटिव है मतलब आपने लैम्डा को बढ़ाया है, तो डेल्टा थीटा निगेटिव है, थीटा की वैल्यू घटी है। निगेटिव मीन्स घटी है। और जब डेल्टा लैम्डा निगेटिव है मतलब आपने जब लैम्डा को कम किया है, तो डेल्टा थीटा पॉजिटिव है मतलब थीटा की वैल्यू बढ़ी है। तो बच्चों ये समझिएगा कि अगर मैं दिखाऊं ओरिजिनली लैम्डा नॉट वेवलेंथ पे ये सिचुएशन था, तो एक एक्सट्रीम पे ये डेल्टा थीटा कम हो गया और दूसरे एक्सट्रीम रे के लिए, एक्सट्रीम रे मतलब दो सबसे छोटे और सबसे बड़े वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, तो एक केस में ये एंगल थीटा जो है वो डेल्टा जो भी डेविएशन एंगल था, इमर्जेंस एंगल था, वो डेल्टा थीटा घट जाएगा और एक केस में डेल्टा थीटा बढ़ जाएगा। तो नेचुरली एंगल बिटवीन 2 एक्सट्रीम रेज विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस। दोनों एक्सट्रीम रेज के बीच का जो एंगल है, फिर से समझ लीजिए, अगर एग्जैक्टली लैम्डा नॉट एंगल पे भेजा जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वही √3 है, लैम्डा नॉट के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, ये सेंटेंस और इसमें लिख दिया जाए तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि हम पिछले ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। फॉर लैम्डा नॉट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज √3, ये ऐड कर लीजिए। मतलब जो पिछला क्वेश्चन दिया गया था वो लैम्डा नॉट वेवलेंथ के लिए दिया गया था, लाइट रे 60 पे निकली। अब अगर लैम्डा नॉट की जगह लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा का इस्तेमाल किया, एक ऐसा वेवलेंथ का इस्तेमाल किया, तो उस केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू एन नहीं रह जाएगी, डेल्टा एन से बदल जाएगी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब डेल्टा एन से बदलेगा तो जो एंगल है थीटा जो 60 डिग्री दिया है उसकी वैल्यू में ये बदलाव होगा। तो हम एक बार कह रहे हैं कि लैम्डा लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा है, और दूसरी बार कह रहे हैं कि लैम्डा लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा है। तो एन की जो वैल्यू है उसमें जो डेल्टा एन का चेंज है वो एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हुआ ना भाई। तो डेल्टा थीटा की वैल्यू में भी चेंज एक बार पॉजिटिव और एक बार निगेटिव हुआ। दैट मीन्स जो पहले से थीटा 60 डिग्री था एंगल ऑफ इमर्जेंस, एक बार एंगल डेल्टा थीटा ज्यादा हो जाएगा 60 प्लस डेल्टा थीटा, और एक एक्सट्रीम कलर के लिए, एक एक्सट्रीम वेवलेंथ के लिए वो 60 माइनस डेल्टा थीटा हो जाएगा। तो जो दोनों रेज बाहर निकली, एक्सट्रीम रेज, मार्जिनल रेज, उनके बीच का एंगल डेल्टा थीटा का डबल, दैट मीन्स 8b बाई लैम्डा क्यू इंटू डेल्टा लैम्डा हो जाएगा। आई होप कि बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। एक और क्वेश्चन इस पे मैं आपको दे देता हूँ, ट्राई कीजिएगा। ये मेरी बुक से लिया गया क्वेश्चन है, शायद क्वेश्चन नंबर 130 है, रे ऑप्टिक्स के चैप्टर का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के चैप्टर का। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इसको आप जरूर ट्राई कीजिएगा, अब कर पाएंगे आप। ये एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, लैम्डा नॉट वेवलेंथ की लाइट इस पे जब इंसिडेंट होती है तो फोकल लेंथ f0 पाया गया। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ये सभी लाइट रेज यहां जाके कन्वर्ज हो जाती हैं। ये फोकस है फॉर लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा नॉट, और ये जो लेंथ है ये f0 के इक्वल है। Now suppose we send a light having wavelength in the range lambda naught plus minus delta lambda। इसका स्टेटमेंट का मतलब होता है कि जो लाइट है उसकी वेवलेंथ लैम्डा नॉट माइनस डेल्टा लैम्डा से लैम्डा नॉट प्लस डेल्टा लैम्डा के बीच में, एंड इट इज गिवन दैट डेल्टा लैम्डा इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू लैम्डा नॉट। ठीक है, इसका मीनिंग मैं आपको पहले समझा चुका। तो एक रेंज ऑफ वेवलेंथ जब भेजी जाती है तो सारे लाइट रेज जो हैं वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होंगे। लाइट रेज जो हैं वो पॉइंट ए से बी के बीच में हर जगह पे फोकस होंगे।
ये दोनों एक्सट्रीम वेवलेंथ जो है वो यहां और यहां फोकस होगी। तो आपको कैलकुलेट करना है लेंथ ए बी, आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है, आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है बच्चों। इट इज अगेन गिवन दैट refractive index of the material of the lens, refractive index of the material of the lens as a function of wavelength lambda is a plus b by lambda square. A and b are two positive constants. So refractive index as a function of wavelength is a plus b by lambda square. अगर मैं इस लेंस के ऊपर एक मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ भेजता हूँ, हैविंग वेवलेंथ फ्रॉम दिस टू दिस, तो जो लाइट रेज हैं वो एक पॉइंट पे फोकस नहीं होके एक प्रिंसिपल एक्सिस पे एक रेंज के ऊपर फोकस होती है, ए से बी तक के बीच में। तो आपको लेंथ ए बी को कैलकुलेट करना है, ये आपका होमवर्क।